Between India and Australia, we are down to 1 hour. We are down by 1 hour of play, and India are 89 for 3 batting first against Australia. They have lost 3 key wickets of Shubman Gill, Rohit Sharma, and Shreyas Iyer. और ख़ास तौर पर शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर जिस तरह आज सस्ते में आउट हुए, वो भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है। रोहित शर्मा ने शानदार शुरुआत की और जिस तरह से वो पारी को एक अच्छी शुरुआत दिला के जाते हैं, आज भी उन्होंने किया। हालांकि जिस गेंद पर वो आउट हुए, कई प्रशंसकों को लगता है कि वो गैर ज़रूरी था। क्यों रीका? बिल्कुल, let's have a look at what happened when India was put into bat first. Captain Rohit Sharma, once again in rich vein of form, he came out all guns blazing, just the way he has been in the rest of the tournament. इंडिया का रन रेट अच्छा है जैसा चाहिए, लेकिन विकेट के मामले में भारत को थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो गया। लेकिन विराट कोहली मैदान में है बीचों बीच और उम्मीद कर रहे हैं उनसे उनके प्रशंसक कि आज वो 800 तक पहुंच जाएंगे इस वर्ल्ड कप में। पहले ही वो वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड बना चुके हैं और आज जिस तरह की कैच कुछ देर पहले रोहित शर्मा की हुई, वो 1987 में मार्टिन क्रो की उस कैच की याद दिलाता है जिसमें डेव हॉटन को उन्होंने आउट किया था और एक शानदार कैच की थी। बिल्कुल उल्टे दौड़ते हुए गेंद को उसी तरह उन्होंने कैच किया जिस तरह आज ट्रेविस हेड ने किया है। तो ये शानदार मुकाबला जारी है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये स्टेडियम। And absolutely a lot of color and excitement. We're all rooting for the men in blue, as you can see here in studio as well. And our reporters, spread across the length and breadth of the country, tapping the excitement. Rika, very few can actually beat Indians when it comes to the cricket frenzy. In fact, Ratandeep is now joining us live on the broadcast. So Ratandeep, what is the mood there? Of course, a lot of excitement, but some anxiety too, I'm sure. That's right. In fact, we are coming to you from the Guwahati University campus, and the Students Association has organized this screening at the Guwahati University campus ground, and there are a lot of students here. And when the match started, there was a lot of excitement when Rohit Sharma was hitting the ball all around. But now with the 3 wickets down, there is a bit of tension in the minds of these youngsters. आपसे बात करते हैं, 3 विकेट गिरा है, आप लोग बहुत एक्साइटेड थे। अब क्या लग रहा है? अभी भी विराट कोहली है वहाँ पे? हाँ, विराट कोहली जब तक है तब तक होप है। और क्या टोटल की तरफ देख रहे हैं आप? 300 परफेक्ट होगा। और जैसे रोहित शर्मा बैट कर रहे थे, पटक से आउट हो गए, जिस बॉल पे आउट हो गए, निराशा रहेगी? हाँ, वो तो रहेगी। मतलब ओवर में एक छक्का और एक चौका आ गया था, तो उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी राहुल और कोहली है, तो ये दोनों अगर पार्टनरशिप बना लेते हैं तो एक बड़ा टारगेट हो सकता है। So there you are. They are a bit upset in the way Rohit Sharma got out, but they're saying that they're confident that there would be a partnership which will get built, and with this partnership, the students feel that India would be able to score more than 300. आपसे बात करते हैं. There's a lot of excitement among students, youngsters this time with the World Cup final. Now that 3 wickets are down, what do you feel about the match? I'm a little bit sad actually. Hoping for the best, of course. Hoping for the best. So the students here are hoping for the best. Across Assam, across Guwahati and other parts of Northeast, there have been similar type of screening. You can see here the students actually, this is the stadium of the university, and they are using this opportunity to, be together, watch this match, and there is a lot of support for the Indian team. At this moment, a bit pensive with 3 wickets down, but they're keeping their fingers crossed that Virat Kohli, who is there in the middle, would go on to score a big innings. There would be another big innings. Everybody's hoping for a century from Virat Kohli.
Well, yes, Ratnadeep, thank you very much. If that is to happen, then it will be Virat Kohli's century number 51 in the ODIs. He's already scored the 50th against South Africa in Kolkata. We have a largish audience in the studio, and right next to me is Vaishali, who's been an India A cricketer. Vaishali, आप हमें बताइए जिस तरह की शुरुआत इंडिया टीम की हुई है, how much runs do you expect? Do you expect them to go past 300 runs, though they have lost 3 wickets now? 3 विकेट्स लॉस्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अराउंड 300 अराउंड ही रहेंगे स्कोर. एंड अगर जिस तरह से कोहली एंड राहुल और बाकी बैट्समैन खेलेंगे तो चीज़ हो सकता है कि 300 अबव हम कर ले स्कोर. एंड सबसे मेन रन इम्पोर्टेंट रेट धीमी हो गई है. जिस तरह से रोहित शर्मा ने शुरू किया था उस तरह से इट्स नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू दैट. इट्स नॉट एज पेसी एज दैट. जी बिल्कुल, रन रेट कम हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोहली एंड केएल राहुल अगर खेलते रहेंगे और पार्टनरशिप एक लॉन्ग होगी एंड बेटर होगी तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा एक टारगेट हम दे सकते हैं ऑस्ट्रेलिया टीम को. आपको शायद कुछ बोलना है, बोलिए. नहीं, आप लोगों में किसी को कुछ बोलना है? आप यहाँ पे बैठ के स्टूडियो में बैठ के मैच देख रहे हो. एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? हाँ, कैन द माइक बी पास्ड ऑन प्लीज़. जी बताएं. मेरा नाम सौरभ पठान है. मैं TNM क्रिकेट अकेडमी इंद्रपुरम से स्टूडियो में आया हूँ. और इस मैच में रोहित शर्मा ने अपना रोल बखूबी निभाया जैसे वो पूरे वर्ल्ड कप में करते आ रहे हैं. परंतु श्रेयस अय्यर का बॉल थोड़ा फंस के आया, पर वो जैसी भी कंडीशन थी हमारे साथ, जैसे भी टीम इंडिया के साथ कंडीशन थी वो हो चुका है. पर हमें आगे पर ध्यान देना है, जैसे भी विराट कोहली और केएल राहुल साथ में एक पार्टनरशिप बिल्ड करें लंबे टाइम तक. जैसे पिछले मैच में जो इंडिया का नॉकआउट से पहले मैच हुआ था उसमें भी 3 विकेटें जल्दी खो दी थी इंडिया ने. परंतु उसके बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने अच्छी पार्टनरशिप करके बिल्कुल जी. तो 212 का स्कोर था शायद, तो उसको चेज किया था जी. और वही उम्मीद करते हैं. हाँ, केएल राहुल और विराट कोहली की जोड़ी यहाँ पे कुछ कर दिखाएगी. आप बताइए. मुझे लगता है कि इस टाइम पार्टनरशिप की सख्त से सख्त ज़रूरत है टीम को अपनी, क्योंकि कोहली जो है वो जब तक खड़ा रहेगा जब तक कोई हारने जीतने की भी वो नहीं है. और मैम अभी कोई इनिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई, आधी 15 भी ओवर भी नहीं हुआ अभी, इसलिए मैम कुछ कहा नहीं जा सकता. बिल्कुल. सुशील जी, जैसे we often say that in India every second person is a political expert, वैसे every third person is a cricket expert as well here. So that is something, and the spirit that cricket can evoke. Every second person is a cricket expert and a third person is political expert. Absolutely. And Pratibha is also now joining us live from Bengaluru. Pratibha, what is the mood there? Excitement, I'm sure. Well, in fact, just a little while ago, there was a lot of excitement, but right since the opening, well, it has been quite a bit of a dampener because right here at Phoenix Market City, there was live screening that was being planned, and the live screening went kaput, and all of them are mighty disappointed, not just with the team, but also with the live streaming. आप कुछ बात करना चाहते हैं? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. I can speak in Kannada only. Did you all come in excited today? Yes, ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು. ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ ಇಂಡಿಯಾ 100 kilometers to watch this match, but they weren't able to catch the live screening of it. A whole lot of them who have gathered here right outside the ticket counter to get their tickets refunded. Let me see if I can go across to one person who's wearing an India jersey. And are you disappointed that you weren't able to catch the live screening? No, that is fine. I'm not disappointed. Still, there is a lot of time, right? India can make. But still, you're going to root for Team India. That's all that matters. That is our strength, right? Definitely, India can do it. We believe in them and hope that they will do the best. Who are the players that you are rooting for right now? Now, presently, Kohli is there, so we believe in him, and definitely he will. He can do better, and another century that you expect. Yeah, definitely, double century. Yeah. Right. What about you? Big fan of Virat Kohli because I started business in 2008.
in under 19. Big fan of Virat Yes, Kohli, yes. right? I started. Are you a big before fan of we Virat started. Kohli too? Indeed, definitely. Yeah. Really rooting that partnership right now of KL Rahul and Virat Kohli works. Really excited. Though a disappointment that the show is cancelled, but yeah, really, it's really a day of excitement. Let's hope for the best. Let's cheer for Team India. Hip hip. Yes, hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Right, so a lot of excitement that still runs in their blood at this point in time because of the finals and all of them rooting for Virat Kohli. Though the live screening has been a bit of a dampener, all of them hope that India will lift the cup and make it up for this evening today. Back to you. शुक्रिया प्रतिभा। तो इस समय कहीं जो है कुछ लोग मायूस भी हैं इसलिए कि मैच नहीं देख पाए, और कई इसलिए मायूस हैं कि भारत ने 3 विकेट खो दिए और ख़ासतौर पर श्रेयस अय्यर जिस तरह से गए उससे मायूसी और ज़्यादा बढ़ी। हमारे साथ कई क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं। सबा करीम हमारे साथ हैं। सबा, इस वक्त जिस स्थिति में मैच है, 99 रन हो चुके हैं, 100 ही मान लेते हैं, और 16वां ओवर चल रहा है, तो आपको क्या लगता है भारत की स्थिति कैसी है इस समय? इसी की उम्मीद की जा रही थी इतनी मजबूत, या और बेहतर हो सकती थी स्थिति? निश्चित रूप से और बेहतर हो सकती थी, और बेहतर नहीं हो पाई है क्योंकि ये जो 3 विकेट एक के बाद एक गिर गए हैं। शुरुआत तो अच्छी मिल गई थी, पहले 5 या 6 ओवर में हमारे पास करीब 45-50 रन हो गए थे। सबसे बड़ा विकेट जो भारत ने खोया है वो है रोहित शर्मा का। 47 रन उन्होंने बनाए और उस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगा चुके थे। और जिस तरह का विकेट है, ये विकेट बहुत ही माकूल है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि वो एग्रेसिव बैटिंग कर सकते थे, पर उन्होंने गलत समय पर वो शॉट खेलने का प्रयास किया जिसकी वजह से आउट हो गए। अब स्थिति ये है कि यहाँ से अब दोनों ये जो प्लेयर्स हैं, केएल राहुल और विराट कोहली, अब ये दोनों को कंसोलिडेट करना होगा। तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी होगी अपने स्ट्रैटेजी में, क्योंकि हर दिन जिस तरह से आप चाहते हैं वो गुजरने वाला नहीं है। तो यहाँ पर दबाव कुछ हद तक भारत के ऊपर है। अब ये साझेदारी के ऊपर निर्भर करता है कि यहाँ से हम किस तरह से निकलते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले करीब 10 या 12 ओवर में कुछ इसी प्रकार की रणनीति भारत की रहेगी। यहाँ पर विकेट नहीं गिरना चाहिए, और करीब 5 रन 6 रन भी प्रति ओवर आ जाता है तो फिर से वो वापस एक शानदार प्लेटफॉर्म बन जाएगा भारत के लिए, जहां से हम एक्सेलरेट कर सकते हैं। और इसके बाद का जो बैकअप है, इसके बाद जो खिलाड़ी हैं उन पर कितना निर्भर करेंगे आप? इस जोड़ी पर तो कर ही रहे हैं। इसके बाद आपके पास सूर्य कुमार यादव है। हालांकि उनको ज़्यादा मौका मिला नहीं है, पर 1-2 मौके जो मिले हैं वहाँ पर ये उन्होंने दर्शाया है कि उनका फॉर्म काफ़ी अच्छा है। रविंद्र जडेजा ने अच्छी बल्लेबाजी की, तो ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास बैटर्स नहीं है, पर यह एक बहुत ही अहम जोड़ी है, क्योंकि ये मध्य ओवर्स की जोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। अगर यहाँ पर भारत ने 1-2 विकेट और खो दिए, फिर मुझे लगता है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा भारत के ऊपर। Vijay, we are at 97 for 3 after 15 overs. Next 15 overs, period of consolidation? Oh, absolutely, and I won't even look at the scoreboard. I'll just try and build a partnership because both of them are really good against spin. They run really well. And I think if these two bat for another 15 overs, you can't stop 4 or 5 and over. And wickets in hand, then you assess the situation, because we talked about Surya, who didn't get a much chance to bat so far, and Jadeja. You don't want to give them 25 overs because they're not accustomed to bat for that long. If you give them 30, 40, 50 balls, that's how they build their innings. So absolutely, it's very, very important that this pair bats at least till 30th over. Pushparanjit, do you still see 300 being scored? Yeah, I still believe 300 could be scored, because the way Rohit batted, like we in just 7 over we were 65-70, so that have given us a little bit of cushion. In the 15 over we are about 98, 90 something for 3, right? Another 15 over, if we go at 4 and over also, that means by the 30th over we will be around 150, around 150. And wickets in hand, last 20 overs we have seen mostly the teams double that score. So that is a possibility, but rightly what Saba said, next 10-13 over we should 10 to 15 over we should just play ones and twos, and after that with wickets in hand, close to 300 is possible. बदरुद्दीन जी, आपने विकेट देखा, विकेट ने कैसे प्ले आउट किया? What kind of score will the bowlers find comfortable to defend? कि जैसा कि पाजी ने बताया कि अभी हमारे पास बैटिंग और बची हुई है, और जो हो चुका उसके हम उस पर बात नहीं करते, लेकिन आने वाले चीज़ पे बात करते हैं कि इनको ये बैट्समैन और थोड़ा सा बैटिंग करें। यहाँ पे अभी लंबा 30-35 ओवर तक यहाँ पे पार्टनरशिप खड़ी रहनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास बैट्समैन हैं जो हम तेज़ स्कोर कर सकते हैं, तो 300 प्लस अभी भी जा सकते हैं हम लोग, और 300 प्लस अगर चले जाएंगे तो फिर हम हमारे पास बॉलिंग अटैक ऐसा है कि हम उसे विन कर सकते हैं।
पिच का बिहेवियर अभी तक 16 ओवर हो गए हैं, एक तिहाई गेम एक उसका ख़त्म हो गया है। पिच का बिहेवियर आपको कैसा लग रहा है प्लेयर्स के लिए, अभी जो इंडिया की पारी बची हुई है और उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा खेलने के लिए, तो किस तरह आपको लग रहा है कि पिच व्यवहार करेगी? आई थिंक जब आप पिच के बारे में बात करते हैं ना, उस पर आप किस तरीके से खेलते हैं। ये सेम पिच है जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि आप डोमिनेट कर सकते हैं गेंदबाजों को, और जैसे ही विकटें गिरती हैं आप लगता है कि गेंदबाजी वापस आ सकती है। तो पिच का स्वरूप जब तक दोनों टीमें ना खेलें कह पाना मुश्किल है कि किस तरीके की है, लेकिन अगर आप इस पर अटैकिंग माइंडसेट रखते हैं कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर आप रन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप डोमिनेट कर सकते हैं, जो हमने पहले 5-7 ओवर के अंदर देखा था। लेकिन विकटें गिर जाती हैं तो फिर आपको थोड़ा बहुत अपना माइंडसेट और गेम चेंज करना पड़ता है। वही किसी भी टीम की एक खासियत है, वही किसी भी बल्लेबाजी यूनिट की एक खासियत है। अगर भारतीय टीम ये दोनों बल्लेबाज बिना, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि बिना रन रेट देखे अगर ये दोनों खेलते रहेंगे और 35वें ओवर तक इस गेम को ले जाएंगे तो 4 या 5 रन इन दोनों के रोक पाना वैसे भी मुश्किल है। और उसके बाद फिर जो गुशपाजी ने पहले कहा ना, आप 200 के पार चले जाएंगे 35वें ओवर तक और फिर 90 गेंदों में आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप 300 का आंकड़ा फिर भी पहुंच सकते हैं। तो इस समय सिर्फ यही होना चाहिए कि आप एक पार्टनरशिप कैसे बिल्ड करें। और जो फील्ड प्लेसमेंट इस समय लग रही है ना कहीं वहाँ पर भी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया अतिरिक्त दबाव नहीं डाल रही है। ये सिंगल्स वगैरह जितनी आसानी से अभी आप देंगे बाद में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। वो थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप आमंत्रित करें इन भारतीय बल्लेबाजों के कि आप अटैकिंग शॉट खेलें, आप चौका मारना चाहते हैं मारिए, सिंगल हम आपको आसानी से नहीं देंगे। और यही अच्छे कप्तानों में थोड़ा फ़र्क होता है। मुझे लगता है कि थोड़े से संतुष्ट नज़र आ रहे हैं कि हमने 3 जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको आउट कर दिया है और थोड़ा प्रेशर है। ये गेम 5-7 ओवर में कभी भी पलटी खा जाता है। All right, Ronak is now joining us live from Mumbai because, of course, as we analyze, it's also the great cricket carnival. As I said, cricket is the only thing perhaps that can evoke such a community feeling. So, Ronak, आप बताइए क्या माहौल है वहाँ पर? आप किसी स्टेडियम में मौजूद हैं इस वक्त? जी देखिए, मैं मुंबई के उसी वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद हूँ जहां पर सेमीफाइनल मैच जीतकर टीम इंडिया आज फाइनल के मुकाबले के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पहुंची हुई है। ये वानखेड़े स्टेडियम है और आपको दूसरी तरफ का नज़ारा दिखाना चाहूँगा। जो लोगों को टिकट नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच का नहीं मिल पाया उनको उसी तरह की फीलिंग आ सके इसलिए यहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम में इस तरह के इंतजाम किए गए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो गरवारे पवेलियन क्लब है वहाँ पर बड़ी संख्या में जो टीम इंडिया के फैंस है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और हर एक रन पर यहाँ पर चीयर किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। भाई, क्या नाम है आपका और ये बताइए कि क्या लग रहा है, 3 विकेट आउट हो गए? No, I think India will still win it because Kohli is standing. Still 30 overs, I think they'll have to play like this for them to actually be in the game. But I think India has a fair chance though. ये बताइए कि जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया डाल रही है, आपको लगता है कि जो शुरुआत में लग रहा था कि 300 का स्कोर यहाँ पर टीम इंडिया बना सकती है वो अचीव कर पाएगी? चांसेस तो है, जिस हिसाब से चल रहा है वैसे चांसेस तो काफ़ी है क्योंकि सूर्या कुमार भी है अभी है, मतलब 300 के चांसेस है और मैं बोलूँगा है। जी देखिए, मुख्य तौर पर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है लोग पहुँचे हैं और एक शानदार तरीके से यहाँ पर आयोजन एमसीए की तरफ से किया गया था और हर एक रन पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि एक रन पर जो है यहाँ पर चीयर किया जा रहा है और लोगों को ये उम्मीद है कि आज भी एक बड़ा टोटल ऑस्ट्रेलिया के सामने टीम इंडिया यहाँ पर बना सकती है। जी Imagine the kind of excitement there, and we are, the excitement is palpable even here in the studio. In fact, Arun is now with us from Ahmedabad, where all the action is. He's one of the lucky few to have been able to make it there. Arun, what is, people are cautiously optimistic there. Okay, I'm being told we've lost the line with Arun there, but of course, Rika, Sushil, people are cautiously optimistic. Going forward, what do we expect? Well, the only thing we expect, as all our experts says, is for this partnership to build and for them to bat for another 15 overs and then try and accelerate. So that's pretty much what we are expecting. विजय भैया, आपने जो एक बात कही ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को लेकर कि वो 1 रन बड़े आसानी से जाने दे रहे हैं जिसको उन्हें रोकना चाहिए क्योंकि यही आखिर में बहुत क्रूशियल होता है, तो ऐसा आपको लगता है कि मतलब और अटैकिंग होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को फील्ड में, फील्ड प्लेसमेंट के लिए? फील्डिंग तो अच्छी फील्डिंग है, शानदार। मार्टिन क्रो वाला कैच था 1987 में डेव वॉटन का, बिल्कुल इसी तरह से। जी हाँ, ऐसे कैचेस आप कहते हैं और ये देखना चाहते हैं आप टीमों के अंदर कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया हो, साउथ अफ्रीका हो, उनकी फील्डिंग एक अतिरिक्त गेंदबाज आपके लिए बन जाती हैं। और वो जो कैच था वो कुछ इसी तरीके का था। किस खिलाड़ी का था वो और ज़्यादा दबाव बढ़ा देता है, किस समय पे वो पकड़ा गया उस कैच की और ज़्यादा महत्वता बढ़ जाती है। तो फील्डिंग का स्तर जो है वो बहुत ही बढ़िया है। कम से कम 4 या 5 चौके आप देखें तो अब तक वो रोक चुके हैं
और चौके सिर्फ रन नहीं रोकते, आप वो दबाव भी रोक देते हैं उस ओवर का, वो फ्लो भी रोक देते हैं। सिर्फ यही था कि मैं सोच रहा था कि थोड़ी बहुत और अग्रेसिव फील्ड सेटिंग आप कर सकते हैं कि एक आध फील्डर और ज़्यादा सर्कल के अंदर रख सकते हैं, लेकिन कप्तान ऑस्ट्रेलिया टीम के बहुत दिनों बाद रंग में दिखे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में कि उन्होंने 5 ओवर डाले हों, 14 रन दिए हों, सिर्फ 1 विकेट ली हो और वो भी एक महत्वपूर्ण विकेट। तो जब आपका कप्तान अच्छा खेलने लगता है तो उसका फ़र्क थोड़ा बहुत टीम पर भी पड़ता है। पर मुझे ये लग रहा था कि जब आप अच्छा खेलते हैं तो वो आपके माइंडसेट में भी दिखना चाहिए। जिस तरीके से रोहित कप्तानी करते हैं उसमें अगर यहाँ पर भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही होती तो शायद आपको एक और अतिरिक्त खिलाड़ी नज़र आता। आप थोड़ा सा दबाव तभी है ना जब आप महसूस कराते हैं, तो दबाव महसूस कराने के लिए आपको मुझे लगता है कि एक आध अतिरिक्त खिलाड़ी और बल्ले के आसपास रख सकते हैं आप। Vijay, would you say that their Indians are being a little ultra cautious against the spinners right now? I think it's not about the spinner, it's about the situation at the moment. They're playing according to the situation. I'm like, nobody wants to play that glory shot, and it's not required. Erika, let's remember, World Cup happened once in 4 years. They can play a bad shot in some other tournament and come back and play that thing, but not in the World Cup and not in the final. And they can take their time. They have that much of a confidence Right. because they have done that in the past as well. Especially this partnership bailed us out against the same opposition. So they can take their time, and then when the right time comes, they can accelerate as well. We've our colleague Arun Singh at the Narendra Modi Stadium. He's been experiencing all the lights and the sound, the buzz around. Arun, tell us what is happening. I know that your camera is going hose piping all over the place, but tell us what's happening there. Well, of course, there's still some fans that you see which are entering here in the Narendra Modi Stadium, and everybody outside is tracking the score here. I have one of the fans here. क्या नाम है आपका? पूर्वा। कहाँ से आए हैं? मैं अहमदाबाद का ही हूँ। अच्छा, तो अंदर नहीं जा रहे आप? नहीं, अभी थोड़ी देर में जा रहा हूँ, मेरे फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। ओके, तो अभी देखिए स्कोर आप बाहर से देख रहे हैं। किस तरीके एज अ फैन आप क्या कहेंगे? एज अ फैन अभी रोहित का जाना, गिल का जाना, थोड़ा झटका लगा? सेटबैक जैसा है, अभी थोड़ा झटका लगा है, बट स्टिल अभी होप है। अभी कोहली है क्रीज पे, राहुल भी है क्रीज पे, तो अभी एक होप बनी हुई है। और डेफिनेटली 2011 में भी हम ही जीते थे क्वार्टर फाइनल ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में, आज भी हम ही जीतेंगे, वो तो विश्वास है ही। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बार पहले भी हमारा मुकाबला हो चुका है फाइनल में और तब हम हारे थे, तो उस तरीके की कुछ यादें वापस आ रही हैं? हाँ, अभी ये थोड़ा टफ कंडीशन हो गया है ना, 3 विकेट जा चुकी है ऑलरेडी। इन तीनों बैट्समैन सही थे अपने, तो अभी थोड़ा कुछ कहने जैसा नहीं है। Okay, so of course they have a lot of expectations, but all eyes are there on the scorecard. But if you see the buzz, it's not. India! The cheering doesn't stop irrespective of how many wickets are down there. Arun, tell us the number of people outside the stadium. Is it almost equal to the ones inside? Well, it won't be wrong to say because it's a long stretch. If we can pan through out here on this street, you see several fans here. This is just the main gate, and this is one part of the stretch that we're talking about. It's a long stretch. We are under a metro bridge, and it's quite a long road. And if, as you can see here, it's filled with people, and there are several people who don't have ticket, but they've just come here to vibe with the rest of the fans, and you can see they're here wearing the jerseys and waving the national flag. शुक्रिया अरुण। अहमदाबाद से अरुण बता रहे थे कि क्या वहाँ पर जो प्रशंसक हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, उनका जोश किस तरह का है। यहाँ भी दिल्ली में जब मैं ऑफिस आ रहा था तो रास्ते लगभग खाली थे, आज उस तरह का ट्रैफिक नहीं था, संडे भी है और ऊपर से मैच भी। हम अब चलते सीधे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहाँ हमारे सहयोगी नीलेश मौजूद हैं। वहाँ भी इंडोर स्टेडियम में मैच देखने का इंतज़ाम किया है। नीलेश, किस तरह का जोश है वहाँ? चुनाव तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब क्रिकेट का जोश है आज वहाँ पर। बिल्कुल, चुनाव के बाद सब रिलैक्स मोड में है, संडे भी है और वर्ल्ड कप का इतना बड़ा मैच भी है, फाइनल मैच। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ये इंडोर स्टेडियम है और जितनी भी सीटें हैं लगभग सारी फुल हो चुकी हैं। चाहे कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया था कि यहाँ पर हम लोग एक साथ मैच देखेंगे और मुख्यमंत्री कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं
आकाश शर्मा, क्या लग रहा है, क्या माहौल इंडिया का क्या लग रहा है? सबसे बड़ी बात है, क्रिकेट ऐसा खेल है जहां पूरा 100 करोड़ भारतीयों के दिल में बसता है। और रायपुर शहर में आज हम भूपेश बघेल जी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित ये मैच सब मिल के देख रहे हैं। युवाओं में खास का बड़ा उत्साह है, रायपुर शहर के युवा आके बैठे हैं और स्क्रीन में ये मैच देख रहे हैं। और भारत क्योंकि मैच जीत रहा है, मैच पर जीतना है कि रनों का कितना आंकड़ा रहेगा, और निश्चित रूप से भारत आज तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। बिल्कुल, 3 विकेटें गिर चुकी है इसको लेके, हालांकि थोड़ा सा लोगों में निराशा भी है, लेकिन मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, एक माहौल भी क्रिएट करने की कोशिश की गई है। एक पिच बनाया गया है, स्टंप लगाया गया है, बैट रखा है, और जहाँ पर मुख्यमंत्री के बैठने की व्यवस्था है वहाँ पर भी बैट बल्ला लगा है। उम्मीद की जा रही है कि मुख्यमंत्री जैसे ही आएंगे तो एक डमी मैच भी खेला जाएगा। बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और लगभग स्टेडियम आप देख पा रहे होंगे कितनी फुल है। हमारे साथ मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा जी भी हैं। विनोद जी, स्वागत है। स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आज मैच को लेकर? क्या 3 विकेट गिर चुके हैं, क्या उम्मीद लग रही है, कितना स्कोर जाएगा? मैं क्रिकेट का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, पर इंडिया जीतेगी ये जानता हूँ। चलिए, क्रिकेट का लेकिन एक उम्मीद होगी सर कि कितना स्कोर लगभग प्रिडिक्ट होगा, कर सकते हैं? मैं क्रिकेट के बारे में इतना कुछ नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ देखता हूँ, मजे लेता हूँ, खेल के मजे लेता हूँ, और इंडिया जीतेगी ये जानता हूँ। बढ़िया है। राजनीति का अभी जस्ट खत्म हुआ इलेक्शन, काफी आप लोग थके हुए थे। इस इलेक्शन पे भी इंडिया जीतने वाली है, अगले इलेक्शन पे भी इंडिया जीतने वाली है, सिर्फ इंडिया ही जीतेगी। I think they are very, very optimistic about Team India winning. Sabha, before we go into a quick break on the show, we'll have to ask you a little bit about Australia's fielding. Do you think, the way they have fielded today, they've just raised their standard to another level? Yeah, from the last game, isn't it? Even against South Africa, they won because of the fielding, and we have seen that on view today as well. And I think Australia, I just get this feeling that they are kind of handicapped because of the kind of resources they have in the bowling 11. If you look at Glenn Maxwell and Adam Zampa, this is a wicket on the slower side. The ball, although is not gripping, but you need to have genuine spinners to exploit these conditions. Thankfully for India, we have Ravindra Jadeja and Kuldeep Yadav. So what Vijay was alluding to, that Pat Cummins should have attacked more. He should have done that. But you also expect that kind of bowling from your two spinners. Mm-hmm. Now I think with Josh Hazelwood and Pat coming from the other side, I would expect Pat Cummins to attack more, get one more fielder inside the circle, and get the two batters to try and play some more attacking shots. Right, it's an interesting stage in the game. India have lost 3 wickets, but everyone's hoping for at least 300 runs to be on the board, and that would make it perhaps difficult for Australia to chase down. We'll go into a break at this point. Do keep watching NDTV. किंग कोहली जब मारेगा तो शोर मचाना है, किंग कोहली जब मारेगा तो शोर मचाना है, इंडिया टीम को वर्ल्ड कप में मिलके जिताना है, इंडिया टीम को वर्ल्ड कप में मिलके जिताना है। अरे जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया टीम जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, भारत देश जीतेगा। थैंक यू। तो भले ही 3 झटके शुरुआती भारत को लग चुके हों, लेकिन 100 का आंकड़ा पार हो चुका है रनों का, और अभी हमारे जो बेहतरीन बल्लेबाज हैं विराट कोहली, केएल राहुल, वो क्रीज पर बने हुए हैं, तो हमें घबराने की ज़रूरत तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और सुशील, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अभी नहीं लगता कि कोई मुश्किल जो है वो आ सकती है। थोड़ा सा शुरुआती झटके ज़रूर लगे, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बड़े मैचेस में। बड़े मैचेस में ही होता है, और इसीलिए मध्यक्रम पर सारी जिम्मेदारी आती है। और इस वक्त भारत का मध्यक्रम जो है वो बिल्कुल मजबूती के साथ टिका हुआ है। केएल राहुल और विराट कोहली दोनों क्रीज पर हैं। विराट कोहली ने 40 रन बना लिए हैं और 20 रन हैं केएल राहुल के, यानी दोनों के दोनों अब पिच पर जम चुके हैं और उनकी आंखें अब गेंद पर बिल्कुल जमी हुई हैं। अगर वो कोई गलती न करें तो एक लंबी पारी भारत की कुछ देर में आकार ले सकती है। हालांकि एवरेज भारत का
ज़रूर 6 से नीचे आ गया, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अगर अगले 10-15 ओवर इसी तरह खेलते रहे तो फिर एक बार मौका मिलेगा रन रेट को तेज़ी से बढ़ाने का। बिल्कुल, और अगर हर ओवर में अगर 1-1, 2-2 के हिसाब से रन लेते रहेंगे तो हम आसानी से 280, 286 के ऊपर जा सकते हैं, और फिलहाल यही आंकड़ा रहेगा। वैशाली है हमारे साथ। वैशाली, शुरुआती जो झटके लगे उसमें कहीं ना कहीं ये भी नज़र आया कि ऑस्ट्रेलिया जो ट्रैप करना चाहती थी, जिस तरह से रोहित और विराट को, पिछले मैच का भी अगर हम याद करें तो इसी तरह की फील्डिंग के ज़रिए उन्होंने विराट को फंसाने की कोशिश की थी, और शायद वो इसमें कामयाब रहे कप्तान को आउट करने में। जी बिल्कुल, उस टाइम पे तो रहे थे, लेकिन आज जैसे उन्होंने रोहित शर्मा ने खेला है, उन्होंने काफ़ी अच्छी बैटिंग की है, और उनकी कोशिश ये थी कि वो 6 के बाद एक 4 और करें, जिससे कि हमारा रन रेट और बेटर हो जाए। और उनका जो टारगेट था, मेरे हिसाब से उनका यही टारगेट था कि वो 10 ओवर के अंदर जितना भी स्कोर बना सकते हैं वो उतना बनाएं, और उनका वो टारगेट पूरा हुआ है। 10 ओवर्स में उन्होंने 80 रन्स बनाए हैं इंडिया टीम ने, और इससे बेटर मुझे नहीं लगता कि और अच्छा कोई और बैटिंग हो सकती है। हमारा मेन टारगेट वो था। उसके बाद अगर हम बात करें सुमन गिल की, तो उनको इतना ज़रूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की, क्योंकि उनके साइड में रोहित शर्मा खेल रहे हैं, वो हिटिंग कर रहे हैं, तो उनको हिटिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। और वो नॉर्मली भी अगर थोड़ा सा वहाँ पर रुकने की और जमने की ज़रूरत थी, और शुरुआत में अगर रोहित और शुभमन गिल जम जाते तो शायद आंकड़ा अभी कुछ और होता, क्योंकि रोहित की प्लानिंग ही ये थी कि शुरू में अच्छे से हिट करना है। हमारे साथ ये क्रिकेटर भी हैं, आप लोग भी खेलते हैं, बॉलर्स हैं आप। किस तरह की ऑस्ट्रेलिया की आपको इस वक्त फील्डिंग और जो बॉलिंग है वो नज़र आ रही है यहाँ पर? जैसे प्लान वो कर रहे थे उस तरह से फंसाने की कोशिश करते हुए नज़र आए शुरुआत में, थोड़ी कामयाबी भी मिली ऑस्ट्रेलिया को? जैसा कि शुरुआत में एक अच्छा स्टार्ट दे दिया था रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने। शुभमन गिल को अपना रोल जितने गत मैच हुए हैं उनका निभाना चाहिए था। जैसे शुभमन गिल थोड़ा धीमा खेलते हैं, बॉल टू बॉल खेलते हैं, 20 बॉल 20 रन, 30 बॉल 30 रन। रोहित शर्मा खेलते हैं 15 बॉल 30 रन, 35 रन। तो रोहित शर्मा अपना रोल बखूबी निभा रहे थे, परंतु शुभमन गिल ने एक गलत शॉट खेला, गलत शॉट नहीं बोल सकते, ज़ोर से मारने का प्रयास किया और सीधा मिड ऑन के फील्डर को हाथ में दे बैठे। उसी के बाद से फिर 2 विकेट और लगातार गिर के थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, परंतु जैसे जोड़ी पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो प्रदर्शन दिखाया इन दोनों जोड़ी ने, वो एक लंबा हमें देखने के लिए मिलेगा। और ये दोनों अगर एक 150 की पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं तो बाद में हमारे पास तेज तर्रार बल्लेबाज हैं, सूर्य कुमार यादव, जो जडेजा हैं, लंबे हिट मारने में जो सक्षम है। अभी जो नज़र रहेगी ये दोनों प्लेयर एक अच्छी पार्टनरशिप को आगे लेके जाएँ, जैसा भी रहेगा। उसके बाद फिर एक बाद में जो हिटिंग का प्रोग्रेस रहेगा तो वो जडेजा और सूर्य कुमार यादव उसने अक्षमता रखते हैं। और अदिति, हमारे साथ कई नन्हे क्रिकेटर भी हैं इस वक्त स्टूडियो में, जो अपने हाथों में अलग अलग प्लेकार्ड लेके बैठे हैं, कोई विराट का, कोई श्रेयस का, और मैं देख रहा हूं कि विराट वाले ज़्यादा हैं, मोहम्मद शमी का भी है। और आपके वाले में क्या है? आप में आउट लिखा श्रेयस अय्यर, मोहम्मद शमी, लग रहा है ये 3-4 खिलाड़ी जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा। रोहित शर्मा का क्यों नहीं है आप में से किसी के पास? रोहित शर्मा तो इंडियन टीम के कैप्टन है आपके पास? कहाँ है? इसमें तो 4 लिखा है। अच्छा, अगर आपको क्या लगा अभी तक के मैच में सबसे अच्छी चीज़ और सबसे ख़राब चीज़ क्या हुई है? सबसे बैड चीज़ जो हुई है अब तक पूरे टूर्नामेंट में, वो तब ये हुआ था जब रोहित शर्मा आउट हुए थे। और जो सबसे अच्छी चीज़ हुई थी वो जब इंडिया फाइनल्स के लिए हुए थे क्वालिफाई। अभी तक सब थोड़ा बुरा भी चल रहा है, थोड़ा अच्छा भी चल रहा है, बट इंडिया कैन स्टिल मेक इट। आज के मैच में क्या सबसे अच्छा हुआ, क्या सबसे ख़राब हुआ? आज सबसे ख़राब तो रोहित शर्मा की जो विकेट लिया था उन्होंने। सबसे अच्छा तो अब तक पता नहीं, लेकिन मैच तो अब तक सही चल रहा है, ठीक चल रहा है। आप लोग तो स्ट्रीट क्रिकेट में वर्ल्ड कप खेले हुए हैं, पीछे जितने भी आप लोग हैं, और सलाम बालक ट्रस्ट से आपने बताया। आप लोगों को क्या लगता है, रोहित शर्मा ने जो शॉट मारना चाहिए था उनको, या आराम से खेलना चाहिए था? एक छक्का और चौका तो लगा चुके थे। सर उन्हें आराम से खेलना चाहिए था, थोड़ा आराम से खेलना चाहिए जी। मतलब भारतीय कप्तान को नसीहत दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह का अभी तक जो मैच चला है, अगर आप क्रिकेट खिलाड़ी या प्रशंसक के नज़रिए से देखेंगे, आप होते तो क्या करते? अभी तक जैसे भी रोहित शर्मा ने, अभी जैसे आपने बताया था, रोहित शर्मा अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। उनको जो उनका गेम है वो अपना नेचुरल खेल रहे थे। कहीं ना कहीं शुभमन गिल को उसका साथ देना चाहिए। ये अभी तक का जो भी चला है, पहले मैच से अभी तक का, दोनों ने अच्छी बैटिंग की है, लेकिन
बैड लक है कि अभी उनका पिछली बार भी वो 47 पे, इस बार भी 47 पे आउट हुए। बट अच्छी बात ये है कि अभी रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट हमारा अभी उसमें क्रीज में है। पिछली बार भी उन दोनों के बीच में अच्छी पार्टनरशिप थी। उस टाइम पे चेस करना था, इस टाइम पे टारगेट देना है, बस फ़र्क यही है। लेकिन जितना लंबा खेलेंगे उतना हमारा अच्छा स्कोर जाएगा। हाँ बच्चे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? यस सर। सर सबसे अच्छी चीज़ वो है कि केएल राहुल और विराट कोहली रूट्स डेवलप कर रहे हैं अभी, पर अनफॉर्चुनेटली अगर वो आउट हो जाते हैं तो वी कुड नॉट मेक इट। पर सबसे बुरी चीज़ ये है कि जितना रोहित शर्मा को टीम के लिए करना चाहिए था वो उतना नहीं कर पाए, और जितना शुभमन गिल को करना चाहिए था वो भी उतना नहीं कर पाए, और 3 विकेट सबसे पहले डाउन हो गए, इसलिए थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, पर वी कुड मेक दैट। अगर आप रोहित शर्मा की जगह होते तो आप शॉट मारते वैसा? सर हमें कामली खेलना चाहिए था स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल को हिट करना चाहा, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनके लिए थोड़ा बैड था। बहुत अच्छी बात है, छोटे बच्चों के पास अपने विचार हैं, इतने बड़े मैच में भी सुशील, रोहित शर्मा को लेकर बात कर रहे हैं, लग रहा है कि यही हमारा अगली जो क्रिकेट टीम है इन्हीं में से कुछ होंगे। कोई क्रिकेट खेलता है आप लोगों में से? आगे जो बैठे हैं ये बच्चे भी खेलते हैं, और पीछे जो है ये वर्ल्ड कप की टीम है, स्ट्रीट वर्ल्ड कप में आपने बताया था सलाम बालक ट्रस्ट से हैं। क्या है स्ट्रीट वर्ल्ड कप और उसमें ये बच्चे कहाँ तक पहुँचे? एक्चुअली स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप ये था कि जब भी वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है तो उससे पहले स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है। तो पूरी दुनिया में जहाँ भी स्ट्रीट चाइल्ड है उनको लेकर के टीम बनाते हैं, और जहाँ पे वर्ल्ड कप होता है वहीं पे वो खेलने के लिए भी जाते हैं। तो ये हमारी टीम गई थी चेन्नई खेलने के लिए, तो इनको 6 मैच में से 4 मैच ये जीते थे, और 3 टीम सेम 6-6 पॉइंट लेकर के साथ में थे। बट रन रेट के आधार पे क्वालिफाई दूसरी टीम ने किया, और वहाँ पे युगांडा ने मैच जीता पूरे वर्ल्ड कप में। बट ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऐसे बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलता है, और कई सारी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। सिर्फ स्ट्रीट क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं, उसमें आर्ट था, घूमने का था, फ्लाइट पे जाना था। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्ट्रीट चाइल्ड कभी फ़्लाइट पे सफ़र ही नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपोजर रहा, और सलाम बालक ट्रस्ट इसके लिए। और भारत में स्ट्रीट क्रिकेट जो है, इसी से ये जो बड़े स्टेडियम के क्रिकेट का रास्ता है वो निकलता है। चाहे सचिन हो, चाहे धोनी हो, सब ने पहले अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला और उसके बाद यहाँ तक पहुँचे। तो इन बच्चों के आगे भी बहुत बड़ा रास्ता है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस दिलचस्प बहस को यहाँ रखते हैं। तो इस वक्त फाइनल चल रहा है अहमदाबाद में। शानदार भारत ने 3 विकेट खोए हैं 126 रन पर, और इस वक्त 24वां ओवर चल रहा है। केएल राहुल और विराट कोहली क्रीज पर डटे हुए हैं। अहमदाबाद में इस वक्त जोश ज़बरदस्त देखने में सामने आ रहा है। स्टेडियम के अंदर 1 लाख से ज़्यादा दर्शक है और बाहर भी खूब दर्शक है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण सिंह हैं, अहमदाबाद में मौजूद हैं। अरुण, सुबह से ही हम काफ़ी जोश और देख रहे थे जज्बा लोगों का, लेकिन अब जब 3 विकेट गिर गए हैं और जब शुरुआती झटके लगे थे, अब तो हमारे दोनों बल्लेबाजों ने संभाल लिया है मामला, और पार्टनरशिप जो है वो थोड़ी ठहर कर अब चल रही है। लेकिन जब शुरुआती झटके लगे तो उस टाइम किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा था अरुण, और अभी क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर? पानी पूरी खाओ विराट। आपने बिल्कुल सही कहा कि उन्हें किंग कोहली किसी वजह से कहा जाता है, और क्योंकि अब एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल रही है तो थोड़ा सा साहस आ रहा है। यहाँ अभी ये पानी पूरी सेंटर से पानी पूरी खा के निकले ये 2 फैंस। आप बताइए कि यहाँ पानी पूरी का मसाला तो लग ही रहा था, लेकिन पहले जो 3 विकेटें गिरी उसका भी मसाला लगा आपको? उसका तो मसाला लगा है। विराट कोहली 125 रन और के राहुल 100। 300 आपकी प्रेडिक्शन है? 300 रन तक जाएगी इंडिया, तो हम कंफर्म। तीखावार कौन करेगा इनके अलावा? मोहम्मद शमी। इनके अलावा मोहम्मद शमी। अच्छा। और ये अपना, और आज खेलेंगे केएल राहुल और विराट कोहली। और पहली 2 विकेटें जब इतनी बड़ी गई, और मतलब गिल हो, रोहित हो, हैं, तो इतनी बड़ी विकेटें जाना एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। वो गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपना विराट है और के राहुल है,
और पीछे हो और दो खिलाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए तो लग गया कि अब क्या होगा, बट अच्छी अभी विराट ने अच्छी अभी बैटिंग स्टार्ट कर दिया, नहीं तो सब फैंस के अंदर वो लग गया था, हमें वो इंस्टा डीएम आने लगे थे, व्हाट्सएप ऐसे आने अब क्या होगा तो हम वहाँ पे पीजी में मैच ही देख रहे थे हॉस्टल में, वहीं से हम डायरेक्ट यहाँ पे आए मैच देखने के लिए। बिल्कुल, माहौल देखने के लिए भी बहुत सारे लोग आए। इंस्टाग्राम डीएम की बात की, मुझे बहुत सारे आ रहे थे कि अरे कोई टोटका किया जाए। अब तो विराट खेलेंगे तो पूरी इंडिया अपनी है। बस ये देखिए, ये जो जिम्मेदारी है कोहली के कंधों पर ज़रूर डाल दी गई है। और इस वक्त हम जैसे स्कोर भी देख रहे हैं तो देखिए 50 के बहुत करीब वो पहुंच गए हैं और लोग यहाँ कह रहे हैं कि 125 या 100 इस तरीके का रन जो है वो से एक्सपेक्ट करता है। प्रेडिक्शन जो है पूरे स्कोर की वो लगभग 300 की आ रही है इस वक्त। पिछली बार मैंने 400 देखा। 400 रन हो गए। विराट कोहली खेलेगा तो विराट भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? ये वो मीम जो है वो तो आने लाजमी है ही, तो इन्होंने कह दिया है कि उनके सामने कोई बोल सकता है क्या। और जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। एक पारी को थोड़ा सा झटके भरी शुरुआत जरूर मिली, लेकिन उसके बाद अब माहौल थोड़ा सा संभलता हुआ नजर आ रहा है। अरुण, आपके आसपास जितने भी क्रिकेट के चाहने वाले हैं, ये गेंद कैसे मिस कर रहे हैं? अगर आज के दिन देखा जाए तो लोग एक गेंद मिस नहीं करना चाहते। ये स्टेडियम के बाहर है, क्या इंतज़ाम है इन लोगों के लिए मैच देखने का कोई, या फिर ये लोग कुछ देर के लिए आ रहे हैं फिर जा रहे हैं? लेकिन होता यह है कि एक भी गेंद नहीं छोड़ता क्रिकेट का प्रशंसक आज के दिन। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। और मैं भी लोगों से यही पूछ रहा हूँ कि जो लोग बाहर हैं वो किस वजह से हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो टिकट ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग ऐसे जो बाद में अंदर जाना चाहते हैं। आप बताइए, आप माहौल देखने आए हैं, टिकट है आपके पास, अंदर जा रहे क्या है? अंदर जाएंगे आप या अभी बाहर माहौल देखने आए हैं इधर? नहीं, बाहर से माहौल देखेंगे, अभी अंदर जाना है। लेकिन विराट आज ऐसा माहौल बना दे 400 के ऊपर तो बढ़िया मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया को आज हरा के ही रहेंगे। अच्छा, बस 200 रन में होल आउट कर देंगे। आप बताइए कि आप बाहर ज्यादा बाहर मजा आ रहा है? जी हाँ, बाहर ही मजा आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल अरुण, जिनको टिकट नहीं मिली है उनको बाहर ही मजा लेना पड़ेगा। व्यूइंग जो है वो हो रही, बिल्कुल, क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है हमारे देश में और टिकट जो है वो 1,32,000 लोगों को ही मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, आपके पास आते रहेंगे और उम्मीद यही करते हैं कि स्कोर जो है वो लगातार बढ़ता जाए और टीम इंडिया जीत की तरफ बढ़ती जाए। हमारे साथ एक और यहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद है, आप भी बॉलर हैं, तो क्या लग रहा है अगर पर बहुत अच्छा स्कोर अगर अभी नहीं खींच पाती है टीम इंडिया, इनसे मैं पूछ रही हूँ आपसे, तो तब आपको क्या लग रहा है, तब बॉलर्स पर जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ने वाली है? देखिए, जितना भी स्कोर रहेगा अपने पास उस तरह की बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि हम लोग 200 या 250 रन भी डिफेंड कर सकते हैं। और दिख रहा है कि विकेट लो रह रहा है और टर्नर भी हो सकता है सेकंड इनिंग में, तो हमारे पास स्पिनर भी हैं और मोहम्मद शमी भी काफ़ी अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि 250 रन तक हम लोग डिफेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, रणजी प्लेयर्स भी हैं हमारे साथ। वैशाली, इनको भी माइक दीजिएगा। इस वक्त जो चल रहा है मैच किधर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल? क्या कोई डरने की बात लग रही है टीम इंडिया के लिए? अभी तो नहीं, कुछ डरने की बात नहीं लग रही, क्योंकि विराट कोहली खेल रहा है क्रीज पे और केएल राहुल भी, दोनों के बीच अच्छी पार्टनरशिप बन रही है। तो यही कंटिन्यू करेंगे तो हमारा टारगेट 300 तक जा सकता है। 300 टारगेट की उम्मीद कर रहे हैं? हाँ, 300 तक हमारा टारगेट जाएगा, क्योंकि दोनों ही अच्छे रुके हुए हैं क्रीज पे और देख कर चल रहे हैं मैच। और अगर नहीं भी रुके तो अभी भी हमारे पास बल्लेबाज हैं, है ना? हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमारी पूरी टीम ही अच्छा खेल रही है, सब अपना बेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन मैच जो है, महामुकाबला जो है वो चल रहा है और अभी भी दर्शकों की और लोगों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ी हुई हैं। इसीलिए सुशील की मैच जो है वो किस तरफ को बढ़ता है और जीत टीम इंडिया को मिलती है या नहीं। बिल्कुल, वक्त है एक ब्रेक का।